Good morning, student. In the last lecture, we have learned how to find out the dimensions of various physical quantities. Now, in this lecture also, we will find how to find the dimensions of given physical quantities. For example, we have taken first is impulse, second one is work, third one is kinetic energy, and fourth one is pressure. लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और इस लेक्चर में भी हम फाइनली ये सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं. दिस इज द लास्ट चांस टू अंडरस्टैंड online classes how to find out the dimension of given physical quantities. Now in this case we have taken the first example, which is impulse, and the formula of impulse is J equals to F into T. J stands for impulse. Impulse is denoted by the letter J. J equals to F into T, where F stands for force and T stands for time. So J equals to Ft is the formula of impulse. Always remember, students. And the SI unit of impulse is Newton second. N stands for Newton and S stands for second. And we have to find out the dimension of given physical quantities. Now we will find out the dimension of impulse. So what is SI unit of impulse? We know that हमें ये पूरा मालूम है, ये हमको बिल्कुल मालूम है कि अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन अगर निकालना है तो उसका SI यूनिट हमको मालूम रहना बहुत जरूरी है. तो हमारे पास SI यूनिट है न्यूटन सेकंड. इंपल्स का SI यूनिट न्यूटन सेकंड. अब न्यूटन सेकंड से हमें उसका डायमेंशन निकालना है, तो हमें मालूम है कि न्यूटन यानी क्या होता है. तो न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया सिर्फ न्यूटन. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया न्यूटन, और मल्टीप्लाई में सेकंड. तो न्यूमरेटर का एक s कैंसिल, डिनोमिनेटर का एक s कैंसिल, तो बचेगा क्या? केजी मीटर पर सेकंड. सो केजी मीटर पर सेकंड का मतलब होता है न्यूटन सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड का मतलब होता है न्यूटन सेकंड. तो इससे हमें अभी डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों. अब हमें डायमेंशन निकालना है. अब ऐसा यूनिट का अगर आप देखोगे कि न्यूटन सेकंड का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड, तो अब हमें डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो यहाँ पे केजी में हम देखते हैं, यहाँ पे इस SI यूनिट में केजी प्रेजेंट है, तो केजी इज प्रेजेंट, और ऊपर में पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. Here M stands for mass and SI unit of mass is kg. kg is present, so we will write in power 1, क्योंकि इसके पावर में भी कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है. The second term is L. L stands for length, और length का यूनिट होता है मीटर, and meter is present in the unit of impulse, और उसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पावर में 1 है. So we will take 1 in the power of length. And the last term is T. T stands for time. Time का यूनिट है सेकंड, and second is present in the term Newton second. But it is in the denominator, therefore we have to take the negative sign. कल मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी SI यूनिट आता है तो सबसे पहले नेगेटिव साइन है. सबसे पहले क्या लेना है? नेगेटिव साइन. अब s के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स m to the power 1, l to the power 1, t to the power -1. So we will write m to the power 1, l to the power 1, t to the power -1. So this is the dimension of impulse. This is the dimension of impulse. Now we will move towards the next, which is work. Which is work. And what is the formula of work? Work is the product of force and displacement. Work is the product of force and displacement. The F stands for force and this small s stands for displacement. So work का formula क्या है? Force into displacement. आणि आपण नवीन आम्ही शिकलो आहोत की वर्क चे युनिट काय असतो? जूल. So what is the SI unit of work? SI unit of work
is joule, which is denoted by capital letter J, which is denoted by capital letter J. So now we will find the dimension of work. So what is the formula? Force into displacement. Now फोर्स का ऐसे यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इसका ऐसा यूनिट है जूल। अगर मैं जूल बोल दूं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा कि इसका डायमेंशन कैसे निकालते सर, क्योंकि वहां पे तो m है, l है, t है। तो इसकी वजह से आपको मैं स्प्लिट कर देता हूं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। न्यूटन मीटर यानी क्या होता है? जूल। बात को गौर से सुनिए, न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। अब फिर से वही बात पे आ गया साहब, न्यूटन मीटर अगर दिया है तो हम डायमेंशन फिर से कैसे निकालें? तो आपको फिर से मालूम है कि न्यूटन को कैसे स्प्लिट किया जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये वाला मीटर। सो क्या होता है फाइनली ये प्रोडक्ट? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का भी मतलब होता है जूल। बात को फिर से गौर से समझिए, न्यूटन मीटर यानी भी जूल और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब भी जूल। अब हमको डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम m l t को फिर प्लॉट कर देते हैं। नाउ हियर m stands for mass and unit of mass is kg. So we will look in this formula. kg is present, kg is present और इसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर में 1 है। So m to the power 1. Now l stands for length and SI unit of length is meter and here meter is present और मीटर के पावर में क्या है? 2, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 2। जो पावर में होगा वही वहां पे लेने का है कैलकुलेशन में। Now t stands for time and unit of time is second. Second is present but it is present in denominator. Denominator में present है, इसकी वजह से हम लेते हैं माइनस साइन। माइनस साइन लेते हैं और सेकंड के पावर में क्या है? 2, इसलिए यहाँ पे पावर भी लेंगे 2। So m to the power 1, l to the power 2, t to the power minus 2. This is the dimension of work. So we will write m1 l square t to the power minus 2 is the dimension of work. Now we have another quantity which is kinetic energy. Now we have to find out the dimension of kinetic energy and formula of kinetic energy is half of mv square. Kinetic energy half of mv square. Again SI unit of एनर्जी इज जूल। आता आपण इथं बघितलं आहे की जूलचा ऑलरेडी आपण डायमेंशन काढला आहे m टू द पॉवर 1 l स्क्वेअर t टू द पॉवर -2 सेम डायमेंशन पाहिजे, कारण युनिट एकच आहे त्याच्यामुळे डायमेंशन सुद्धा एकच असतो। पण आता हा फॉर्म्युला असलेला आहे हाफ ऑफ mv स्क्वेअर, त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडं असं वाटेल की सर हा जो फॉर्म्युला हाफ ऑफ mv स्क्वेअर आहे हा f * s आहे, म्हणून तुमच्या कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी हा फॉर्म्युला मी टाकलेला आहे कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। नाउ लिसन हियर, ये जो हाफ दिख रहा है, ये जो हाफ दिख रहा है इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये डिजिट है 1 2 3 4 5 6 1/2 4/2 दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फॉर्मूलर केस। So magnitude को कंसीडर नहीं किया जाता है when we are finding dimension. So therefore we will neglect half. So formula is like that mv square where m stands for mass और mass का यूनिट क्या होता है? kg।
and this is V stands for velocity, and SI unit of velocity is मीटर पर सेकंड, और इसका क्या है स्क्वायर। समझ में आया? M stands for mass, मास का यूनिट kg इनटू v स्क्वायर, v यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, और उसका क्या लेना है स्क्वायर। तो ये क्या हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट जूल। अभी हमने देखे कि वर्क के फॉर्मूले में जूल यानी क्या होता है, कि जूल यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर इसका डायमेंशन किस तरह से आएगा, m stands for mass, और मास का यूनिट kg, kg is present and it has a power of 1, so we will write power of 1. L stands for length, length का यूनिट मीटर, मीटर is present और उसके पावर में क्या है 2, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2. Then T stands for time and SI unit of time is second, second is present but in the denominator, so therefore we will take the minus sign and power is 2, so m to the power 1 n square to the power minus 2 is the dimension of kinetic energy. So now student, we have the last quantity which is pressure. So pressure, the formula of pressure is P equals to F upon A. P equals to F upon A, where F stands for force and A stands for area. So its SI unit is kg per meter second square. क्या है इसका फॉर्मूला, kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और सिंपली इसे पास्कल बोला जाता है, कैपिटल P स्मॉल a, प्रेशर का दूसरा पास्कल बोला जाता है। और फिर हमको इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सो प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू F अपॉन A, F यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन A स्टैंड्स फॉर एरिया, और एरिया का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मालूम है कि न्यूटन यानी क्या होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो m कैंसल, सो दिस इज kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसका मतलब होता है पास्कल, कैपिटल P स्मॉल a यानी kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, we will take capital M and T. See here M stands for mass and SI unit of mass is kg, kg is present, इसके पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब है पावर में है 1. Now here L stands for length, SI unit of length is meter, meter is present but in denominator, so we will take negative sign, और इसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है पावर में 1. Here T stands for time and SI unit of time is second, second is present but it is in denominator, so therefore we will take negative sign because ये denominator में है और पावर में है 2. So m to the power 1, L to the power minus 1, T to the power minus 2, this is the dimension of pressure, so we will write m1 L to the power minus 1, T to the power minus 2. So guys, these are the overall physical quantities, उस formula, their SI unit, and we are getting its dimension also. हमने ये भी देखा है कि उसके डायमेंशन को किस तरह से हमने फाइंड आउट किया है, किस तरह से उसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन सी ट्रिक ध्यान में रखना है कि हमको वो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आसान हो जाए। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमने सब पढ़ लिए कि डायमेंशन कैसे निकाले, डायमेंशन किस डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, डायमेंशन के लिए क्या क्या जरूरी है, हमें क्या ध्यान में रखना है। लेकिन अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये डायमेंशन इतना जरूरी क्यों है फिजिक्स में, इस डायमेंशन के यूजेस क्या है, ये यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।